Hello students, welcome to our English classes. In our today's English class, we are going to continue the question answer section of our chapter number 9. In this chapter, my dear student, we have seen the picture of a free India. Now come with me and let's try to complete the question answer section of this chapter. Okay? See, first of all, what we are going to do, we are going to choose the correct option. Like, according to the poem, the mind must be free of the fear of its slavery. Then the poet describes reason as a clear stream to refer as pure thoughts. People must be truthful. The poet wants his people to get free education. Okay. Now explain the given lines from the poem with reference to the context. आपको explain करना है तो पहला line क्या पूछ रहा है आपसे? Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. See students, इस line का मतलब ये है कि जो पोएट है वो ये चाहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेसिज्म के बेसिस पे डिवाइडेड ना हो, इसीलिए वो यहाँ पे डोमेस्टिक वॉल्स को तोड़ने की बात कर रहे हैं. ठीक है. Second, where tireless striving stretches its arm towards perfection. इस लाइन का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि पोएट हमारे ये चाहते हैं कि हम सारे लोग टायरलेसली मींस बिना थके हुए, बिना कोई स्ट्रेस लिए हुए, परफेक्शन के साथ अपने एम को अचीव करने का ट्राई करें. ठीक है. देन द थर्ड, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन. इसका क्या मतलब है? माइंड इज फॉरवर्डेड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट. इसका मतलब क्या है? हमें अपने माइंड को नैरो माइंडेड नहीं बनाना है. ओके, वी शुड ट्राई टू डिस्ट्रॉय द वॉल्स ऑफ कास्टिज्म, रेसिज्म, रिलीजन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ओके, वेयर द माइंड इज विदाउट fear and the head is held high. ठीक है. तो इस लाइन का मतलब क्या है कि पोएट उस कंट्री, उस इंडिया को इमेजिन कर रहे हैं जहां पे सारे लोग बिना किसी डर के रह सके और वो अपने सर को ऊंचा करके खड़े हो सके. तो ये पॉसिबल कब है? जब इंडिया में ना कोई कास्ट होगा, ना कोई रिलीजन के बेसिस पे बायस्ड होंगे, ना रेसिज्म होगा, ना ही यहाँ पे इनकम के बेसिस पे लोगों को जज किया जाएगा. ठीक है. तो ये सारी चीजें आप अपने वर्ड्स में लिखोगे. ठीक है. Then see, answer the given question. Answer the questions given below. What is the theme of the poem? इस poem का theme क्या है, dear student? The theme of the poem is that a country, okay, a country in which people used to reside without any fear, and they used to their head held high. Okay, this is the central theme of the poem. Now, what does the poet talk about in particular in the poem? सो स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि इन पर्टिकुलर का मतलब है पोएट ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया किसी भी चीज में पीछे ना रहे. ठीक है. वो किसी एक पर्टिकुलर एम के लिए हमेशा काम करे. ठीक है. जिस तरीके से हमारी कंट्री इंडिया क्या हो पाएगी, डेवलप हो पाएगी, वो नैरो माइंडेड सोच के लोगों से बाहर निकल पाएगी. ठीक है ना. व्हाई हैज द वर्ल्ड हैज बीन सेड टू बी डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक walls. ठीक है. सो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, द वर्ल्ड हैज बीन सेड to be divided by domestic walls in the context of this poem, that every region of the world is divided on the basis of caste, on the basis of class, on the basis of religion, and on the basis of racism. Okay. Now, what are the dead habits of people? Dead habit means, my dear student, people are continuously, still today continuously, they are following the dead habits, like they are now continuously following the old tradition. Okay, they are even not raising any single word if they are witnessing any horrible situation in front of their own eye. This is called as the dead habits of the people. Okay, now when we say reason, what does it mean? Reason का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert and the sand of dead habits. So students, इस पूरे पोएम में रीजन का मतलब ये है, पोएट ये चाहते हैं कि किसी भी रीजन की वजह से, ऑलमोस्ट इस पूरे पोएम में आपको कास्ट, रेसिज्म और रिलीजन, ये तीन टॉपिक्स आपको बार बार मिल रहे हैं. ठीक है. तो यही वो रीजन है जिसकी बेसिस पे कभी भी कोई भी पर्सन इंडिया का या वर्ल्ड का अपने पाथ को ना खोए, ना ही वो अपने पाथ से भटके इन सारे रीजंस की वजह से. ठीक है. चलिए. Now, what is the poet's appeal to God? Okay, so the poet appeals in front of the God that into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Okay, so पोएट ये कहते हैं कि हम उस कंट्री में जीना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरीके की बायसनेस ना हो.
ठीक है ना. अप्रिशिएटिंग द पोएम, देखिए हाउ कैन वी बी फ्री इन द रियल सेंस, कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम रियल लाइफ. सो स्टूडेंट्स, आप लोग फ्री कैसे हो सकते हो रियल सेंस में, आप लोगों को कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स देने हैं. जैसे सती प्रथा थी, ठीक है, सती सिस्टम, एबॉलिशन सती सिस्टम, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है. इसके अलावा आप लोग अपने रियल लाइफ के इंसिडेंट के बारे में बताओगे जहां पे आपको लगता है कि ये फ्री है. लेकिन स्टूडेंट एक और चीज, फ्री का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो कर रहे हो आप अपनी मनमानी करो, ये कभी नहीं होता है. फ्री का मतलब ये होता है कि आप जो करो आपका भी काम हो जाए, सामने वाले को प्रॉब्लम भी ना हो. ठीक है. फ्रीडम मीन्स टू एंजॉय वंस राइट, बट विथ राइट्स comes duty. Explain with suitable examples. This is very important line. Freedom means everybody has right to enjoy their life, okay? But freedom brings duties also, okay? तो इसको कैसे आप explain करोगे? So students देखिए, हमें freedom to speak है, right to freedom है हमारा, ठीक है? आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी को कुछ भी बोल सकते हो. अभी मैं इस क्लास में चाहूँ चाहे जो बोल दूं, लेकिन मेरी ड्यूटी क्या बनती है कि मैं वही बात बोलूं जो मेरे इस पोएम को एक्सप्लेन करे अच्छे से, साथ ही साथ मेरे किसी भी वर्ड से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मेरी ड्यूटी बनती है. सो स्टूडेंट, इसी तरीके से आप इस लाइन को एक्सप्लेन करोगे एग्जाम्पल्स के साथ. जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे कम्युनिज्म होते हैं, ठीक है, बहुत सारे दंगे होते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए. आपको अपनी बात रखने के लिए यू कैन प्रोटेस्ट, ओके, बट पीसफुल प्रोटेस्ट, ओके, डोंट फॉलो द पाथ ऑफ वायलेंस. एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दे चुकी हूँ, यही सब आप इसमें लिखेंगे और फर्दर आप इसको एलैबोरेट करेंगे. देन प्रोवाइड सम एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन एंड मेटाफोर फ्रॉम द पोएम. सो स्टूडेंट्स, अब आपको एलिट्रेशन और मेटाफोर के एग्जांपल्स देने हैं इस पोएम से लेकर, तो चलिए देखते हैं. सो स्टूडेंट्स देखिए, अब आपका एलिट्रेशन का ऑप्शन है, मींस एलिट्रेशन का एग्जांपल है, ये रहा देखिए. द हेड इज हेल्ड हाई, ओके, एंड डेप्थ ऑफ ट्रूथ, ये आपका एलिट्रेशन का एग्जांपल है. अब आपसे सेकंड क्या पूछा जा रहा है? मेटाफोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मेटाफोर. तो देखिए मेटाफोर के आपके एग्जांपल्स हो गए ये. क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन, द डियरी डेजर्ट सैंड, ओके. नाउ द नेक्स्ट, अब देखिए आपसे क्या नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे. Speaking and listening, the poet gives a message of unity and harmony in the poem. What are your views on it? Speak about the idea in class. Include the points below. Okay, so students, इस पूरे poem में जो पोएट है वो यूनिटी का मैसेज हमें देते हैं. तो आप लोग को क्या करना है? मीनिंग ऑफ हार्मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मनी, वे टू क्रिएट हार्मनी, एग्जांपल्स ऑफ हार्मनी, ठीक है. तो आपको ये सारे टॉपिक्स को यूज करके अपने क्लास में इस पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है. नाउ बी, लिसन टू योर टीचर एज she says some statement. Find words, phrases from the poem that expresses the same idea and write them below. Okay, now the right, complete the summary of the poem by filling the blanks. तो ये स्टूडेंट्स, ये आपका समरी है पोएम का. वैसे ये बहुत यूजफुल चीज है आपके लिए, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये जब समरी है तो आपको क्या करना है? इस समरी को फिल करना है, ठीक है. एक दो मैं करूंगी, बाकी आप करेंगे. जैसे द पोएट वांट्स हिज होम कंट्री वेयर पीपल यूज्ड टू लिव in a respected manner and with dignity, ठीक है. ये दो filling the blanks हो गए. He said no one in his country should live in fear, okay. Everyone should be enjoyed their freedom, enjoyed their life as fully, okay. So students देखिए, अब बाकी आगे का कैसे आप फिल करोगे ये डिपेंड करता है आपने पोएम को कितने अच्छे से पढ़ा है. अगर आपने पोएम को अच्छे से पढ़ा होगा then you are able to complete this summary. Now लाइफ स्किल देखिए क्या है. राइट सम हैबिट्स दैट हैम्पर द डेवलपमेंट एंड सक्सेस ऑफ अ नेशन. हाउ शुड पीपल बिहेव एंड एक्ट इंस्टेड, ठीक है. सो स्टूडेंट्स देखिए, बहुत सारी हमारी ऐसी हैबिट्स है जो हमारी कंट्री को या तो डेवलप कर सकती है तो अंडर डेवलप कर सकती है. तो कौन कौन सा? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये है कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज करने का पता होना चाहिए कि क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है. जैसे साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो साइबर क्राइम की वजह से क्या ये अच्छा लगेगा कि हमारी कंट्री इंडिया पॉपुलेशन में तो नंबर 1 है ही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि साइबर क्राइम में भी वो नंबर 1 हो जाए. क्या ये अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है. तो ये एक साइबर क्राइम, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इसके बेसिस पर आप और भी एग्जांपल्स को फाइंड आउट करोगे और लिखोगे कि किस तरीके से ये हमारे कंट्री को रिस्पेक्टेड प्लेस भी दिला सकते हैं वर्ल्ड में और डिस्ग्रेस भी कर सकते हैं, ओके. So student, this is all about this chapter, okay. Now just go through this chapter and complete the question answer of this chapters, okay. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.